Okay, so we are talking about here that the organism can be unicellular or they can be multicellular. In a unicellular organism, a single cell is capable of performing all the metabolic activities required for their existence, required for their survival, capable of performing all the metabolic activities responsible for their independent existence. Here I am using a word, independent existence. Independent existence. So a single cell is also capable of having an independent existence, and they are also capable of performing all the metabolic activities. That means all the unicellular organisms, they are self-sufficient. Yes, Harshvardhan? Ma'am, I had a basic doubt, ma'am. Do we make different notebooks for Nitin sir and you? I'm not getting you. Can you speak a little bit louder? Ma'am, do we make two different notebooks for you and Nitin sir? It's not essential. It's not essential basically in a one, but sometimes the lectures are like that ki, if you are dealing with the human physiology and in the middle there is my class is there, so you have to write the cell, but you can divide the book in two different parts so that from one you can write the BSH ma'am work, and from the beginning you have the NPT sir notes. Okay, you can do that. Okay, thank you, ma'am. Yeah, sure. Ma'am, I have made separate books. Yeah, that is also okay. These are the questions that we used to ask in a school. Now you are big enough to understand what is better for us, what can I do in order to have an organized way of all my subjects. Am I right? Now you are a bigger one, na? Grown up kids, you can understand by yourself what is good for you and what is best for you. Not good, best for you. Okay. Yeah. So बचपन से हमें पढ़ाया गया है, जब से हमने ये साइंस पढ़ना स्टार्ट किया, सेल पढ़ना स्टार्ट किया, जब भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम आता है तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड इज योर अमीबा. And amoeba, yes, definitely it's a unicellular organism, but it's capable of independent existence. एक single cell organism भी independently exist कर सकता है. But a cell consists of, yes, Harshvardhan, your hand is still raised. Do you want to ask anything else? Okay. Now, a cell, if I draw a simple cell, then a cell consists of the membrane. This is the membrane of a cell. In the center, they have nucleus. They have nucleus, and a number of cell organelles are also there. But it's not a condition in all the organism. Depending upon the, listen very carefully, depending upon the organization of the nucleus, ki how the nucleus is being organized inside a cell, the organisms are again divided into two broader classes, that is your prokaryotes and eukaryotes, that we will read today. But before that, let us complete this. So एक सेल तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है, बट अगर कोई भी स्ट्रक्चर लेस देन अ सेल है, लेस देन अ सेल, सेल से थोड़ा छोटा है, दैट मीन्स कि पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल का नहीं है, सिर्फ ये न्यूक्लियस है या फिर कोई भी सेल ऑर्गेनल है, तो यस, any cell organelle is not capable of independent existence. Any organelle, cell organelle का independent existence नहीं होता है. Existence is absent. So एक independent existence अगर कोई भी organism है तो उसके पास एक सेल होना जरूरी होता है, at least one complete cell. So from where we came to know about the cell? What is the cell? So basically your cell
it was first observed by a scientist known as Robert Hooke in the bark of a plant cell. और उसने observe किया कि and he observed that it consists of a number of small apartments. उसने देखा कि बहुत सारे ऐसे small apartments present हैं and he used to name it as ये small छोटे छोटे apartments blocks के जैसे दिख रहे छोटे छोटे घर हैं, ऐसा उसने observe किया था. Where? In bark of a tree. And if it's a bark of a tree, so it's the dead cell. So Robert Hooke first observed, is the board still blur or is it clear? Someone ma'am. has written that the board is Ma'am, it is clear. clear. Na? Ma'am, it's blurred. It's blur. Majority it's of you, clear. please reply the board is blur or is it clear? Clear. It is clear. Yeah. It is clear. Blur. Maybe It's It's blur. clear, ma'am. from Blur. blur. Khushi ne likha. Blur. Board is clear. Blur. I don't know what's happening. Just a minute. Let me check the connection. So we are talking about कि when the cell is being discovered. तो सबसे पहले cell को observe किया गया था in the year 1665. 1865 by Robert And what does it is observed? He observed it in a plant cell, that is bark of a tree. Bark of a tree. Sometimes the question comes, who first observed living cell? Then you will not opt for the Robert Hooke. Robert Hooke. Leeuwenhoek. Yes. Leeuwenhoek A.B. आएगा Leeuwenhoek. जब भी हम living cell की बात करेंगे. Yes, you all are absolutely correct. So before attempting the question, read it twice in order to get the right answer. Okay. So in a bark of a tree, he used to see small compartments. He named these small compartments as cellulae. And this cellulae, जो है, that is your cell. Later on, after the year 1665, in the year, which year Leeuwenhoek has observed animal cells? 1674. Yes, 1674. 1674. Absolutely correct. Robert Hooke reported about this cellula, that is a singular form, cellula, in his book. उसने first time how we came to know कि Robert Hooke ने 1665 में ऐसा कुछ किया था. He reported his findings in a book known as Micrographia. Micrograph. Yes, reported it in Micrographia. It's the name of a book. Micrographia. Okay. Later on, in the year 1674, first time living cell was observed by Leeuwenhoek. Leeuwenhoek in RBC. फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑब्जर्व किया था. तो जब भी लिविंग सेल की बात आएगी तो ऑलवेज वी विल गो फॉर 1664 द ऑब्जर्वेशन ऑफ द लिविंग cells. Okay, so this is all about how we came to know about the cell, that what is cell. Now Leeuwenhoek, when he observed the animal cells for the very first time and the living cell, he used to name the animal cell as animalcules. अगर ये word आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा तो आपको confuse नहीं होना है. Leeuwenhoek ने first time living cell और living में भी animal cell में observe किया था cell को, and he named it as animalcules. Animalcules. ये नेमिंग की थी उन्होंने जब भी ऑब्जर्व किया, जैसे रॉबर्ट हुक ने जब किया तो उसने बोला सेलुले, ठीक है, लेकिन जब ल्यूवेनहुक ने किया तो उन्होंने उसको एक नया टर्म दिया, दैट इज योर एनिमलक्यूल्स. एनिमलक्यूल. नाउ हियर कम्स अ टू वर्ड्स जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं. इफ आई आस्क देम
what is cytology and what is cell biology, and what is the difference between cytology and cell biology. I'm writing here two: cytology and cell biology. When you will go in graduation, when you will doing your MBBS and that, then you have to read a separate branch, a separate a separate subject, cell biology. ऐसे एक separate subject के जैसा आएगा. Immunology एक separate subject आएगा. Biochemistry एक separate subject आएगा. That means ये खुद में बहुत बड़ा है. So what is the major difference between cytology and cell biology? Cytology is the examination of the structure and the shape of a cell. जब भी हम बीमार पड़ते हैं, we got ill, we visit to the doctor, diagnose करने की वो कोशिश करते हैं, तो they recommend to go for the test. तो हम सेल को भी ऑब्जर्व करते हैं, ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है. You may say that is cytology. That means the structure and the shape of the cell is being observed. But अगर वही हम टिश्यू लेवल पे करते हैं तो that is your histology. But cell biology is a bigger aspect. It includes all the things related to the cell, whether it's the cell structure, whether it's the cell function, whether it's the cell metabolism, whether it's the cell reproduction, whether it's the cell biochemistry, everything about a cell we used to study in cell biology. Getting my point? What is the difference between cytology and cell biology? So cell biology is a separate branch of biology, is a separate branch of biology that deals with study of cell structure, function, metabolism, reproduction, all the biochemical reaction, etc. Everything comes under cell biology. But cytology is the study of cell. Cell का क्या study करेंगे? Structure. Clear? Show me the thumbs up if the concept is clear. Yes, very good. Cell biology. Excuse me, ma'am. Yeah, sure. Can you please zoom in? Actually, bacha, I'm using the laptop, and how to zoom can I'll bring it little bit closer so that you can see the board. Is it now visible? Ma'am, can you share the image on the group? Yeah, sure, I will. I'm recording the session as well. Okay, so this is all about the cell, the basic things about the cell. But now, if anyone asks you, who is father of cytology? Who is father of cytology? Robert Hooke is known as father of cytology. Very good. But the detailed structure of the cell was not visible. क्योंकि अभी जब भी हमारे रॉबर्ट हुक ने या फिर लेविन हुक ने सेल को ऑब्जर्व किया था तो उन्होंने सिंपल लेंस, ग्लास लेंस से देखा था. उनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं थे in order to observe the internal structures of a cell. Just a minute. Yes. So the glass lenses that was used basically by the Hooke and the Leeuwenhoek, that was not very advanced. So they are not able to study about the internal structures of the cell. The internal structure of the cell is being studied after the invention of electron microscope by Knoll and Ruska. ये question भी हमेशा पूछा जाता है कि who invented
electron microscope. So electron microscope was invented by Knoll and Rushka, and after that the internal structure of a cell is being studied. I will write it down, the name of the scientist. Internal structure consists of a number of things that we will read today itself. Just a minute, give me a chance to rub the board. So we are studying about the cell. Internal structure, the study of the internal structure is being possible with the discovery of electron microscope by Knoll and Rushka. Actually, this electron microscope is of two types. दो तरह के होते हैं बेसिकली. जब भी आप EM के बारे में स्टडी करोगे तो इट्स ऑफ टू टाइप्स. One is your scanning electron microscope and the other one is your transmission electron microscope. The scanning electron microscopes gives you information only about the surface structure. सिर्फ वो बाहर की चीजों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देता है, surface structure. But if you want to study in detail about the internal structures as well as the shape and the size of the nanoparticles also, बहुत छोटे छोटे particles के size को भी आपको पता लगाना है, तो you have to go for the transmission electron microscope. So the invention of the transmission electron microscopy was a boost in the microscopy industry. Now we can study even the size that are less than the nanometer. Nanometers में भी बहुत छोटे छोटे size को भी हम study कर सकते हैं because of this transmission electron microscope. Now the other thing that we have to read in this chapter is your cell theory. I know that all of you must be knowing about the cell theory, but a little bit introduction is this. Cell theory was put forward by two major scientists, that is your Sheldon and Schwann. Sheldon and Schwann. By profession, Sheldon was a botanist. Sheldon was a German botanist. And your Schwann was a zoologist, was a British zoologist. Botanist वो होता है जो plant को study करता है in detail, and zoologist वो होता है जो animals को study करता है in detail. तो Sheldon was a botanist, German botanist, and your Schwann was a zoologist. Sheldon, when studied the various plant cells, observed that plant cells have cell wall. जब ये Sheldon ने बहुत सारे plants को observe किया, तो he found that plants consist of a cell wall, outer covering. In the other way, Schwann also studied a number of animal cells, a number of different animal cells, and found that animal cells are without cell wall. Schwann ने देखा कि animal cells are without cell wall. Animal cells are without Ma'am, board is blurred. cell wall. Blur है बच्चा? No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. I think there is some, क्योंकि weather भी थोड़ा सा rainy है और maybe network issue होगा, इस वजह से लग रहा होगा, क्योंकि अगर मेरे साइड से होगा तो सारे बच्चों को एक जैसा ही दिखेगा. Am I right or wrong? Right, ma'am. Yes, ma'am. But in order to confirm, Schwann ने बहुत सारे plant cells को भी study किया, ये देखने के लिए कि what are the differences between the plant and the animal cells. So yes, Schwann concluded that the plant cells, they have cell wall and animal cells are without cell wall. He concluded that both the plant cell as well as the animal cell, they have one common membrane, that is your cell membrane. Plasma membrane is present both in plant and animal, but apart from this plasma membrane, plant cells have cell wall. This was a conclusion being made by Schwann.
which was a British zoologist. And after this इन्होंने 1838 में देखा, but later on in the year 1839 cell theory was put forward. And what is the cell theory? It says us that all living organisms are made up of cell and their products. जितने भी living organisms हैं वो cell से बने हुए हैं और उनके products से बने हुए हैं. And they are structurally and metabolically similar. But here there is a question. From where this cell comes, this was not being explained by the Selden and the Swan. उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि ये सेल आई कहाँ से, किधर से आया, किस प्रोसेस से ये सेल आता है, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया. But they only says that all living things are made up of cell. Cell is the basic structural and functional unit of life. ये भी उन लोगों ने बताया. But basic, structural and functional unit of life. But they fail to explain that from where this cell comes. But there are certain objections to the cell theory that was proposed by Selden and Swan. Selden and Swan ने जो ये cell theory proposed किया, इसमें बहुत सारे objections आए, बहुत सारी चीजें हैं जिनको इन्होंने cover नहीं किया अपने इस theory में. The first objection is there are certain organisms which don't have a complete nucleus. उनके पास सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बताया, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में कुछ नहीं बताया. There are certain organisms which are acellular in nature. That means they are without cells, but still they are considered living, and they are none other than the viruses. Viruses, we are talking about the objections of cell theory. Someone is unmuted क्या? कुछ तो आवाज आ रही है, don't think. So ऑब्जेक्शन क्या था? सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो इस थ्योरी के ऊपर आया था वो ये था कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को किधर पुट करना है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उनमें डिफरेंसेस क्यों है इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था. सेकंड था कि वायरसेस जो है वो असेलुलर है, तो व्हाई वी शुड कंसीडर इट एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो वायरसेस आर असेलुलर, और असेलुलर हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जिनको सरवाइव करने के लिए, जिनको मल्टीप्लाई करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए एक होस्ट चाहिए होता है. दे नीड अ होस्ट सेल चाहिए होता है, एंड दोज ऑर्गेनिजम्स आर असेलुलर. So viruses are acellular because always they need a host body for their survival, for their multiplication. They don't have their own cellular machinery. उनके पास अपने खुद का सेलुलर मशीनरी नहीं होता है कि वो अपने सारे कंपोनेंट्स खुद बना सके, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली दे नीड अ होस्ट बॉडी. फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर दैट फ्रॉम द लास्ट 1.5 year we are facing a very tough time due to this pandemic, that is the coronavirus. Yes, this is also a virus, and it also requires a host body for their replication, for their multiplication, and that is the human body. And because of that only it was always recommended to break the chain, because if they won't get a host body they will not survive for a longer time, they will remain as such in the environment for a certain periods of time. तो इसीलिए break the chain वाला रूल जो है हम कहते हैं, क्योंकि इनको सर्वाइव करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए हमेशा एक होस्ट बॉडी चाहिए. क्यों चाहिए? बिकॉज they lack cellular machinery. They lack cellular machinery. ठीक है,
तो ये एक एक्सेप्शन था, ये एक एक्सेप्शन था। बच्चा, कोविड इज बीइंग कॉज्ड बाय अ कोरोना वायरस। मैम, कोविड इज आल्सो अ सेलुलर, यस। COVID is caused by coronavirus, which is a SARS virus, that is rhinovirus havoic. That is, SARS is severe acute respiratory syndrome, जो serious respiratory syndrome cause करता है, और this is a RNA containing virus. So yes, corona is also a virus and it also requires a host body for its survival. Some of the cells, they are without न्यूक्लियस। ये भी एक्सप्लेनेशन हमें सेल थ्योरी से नहीं मिला था कि जो हमारे आरबीसी है, मैच्योर आरबीसी है, या फिर हम सीव ट्यूब सेल्स की बात करते हैं जो प्लांट्स में होते हैं, दे आर विदाउट न्यूक्लियस। तो इनके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। एंड देयर आर मेनी ऑब्जेक्शन। जब ऑब्जेक्शंस आते हैं, जब भी पब्लिक की भी ऑब्जेक्शन होती है, तो दे वांट टू चेंज द रूल, दे वांट टू चेंज द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए। तो इस सेल थ्योरी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहिए था। इस सेल थ्योरी को एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए था, एक प्रॉपर रोल चाहिए था जो हर कोई सेटिस्फाई हो जाए, यस दिस इज द एग्जैक्ट आंसर दैट वी नीड। ये सेल आया कहाँ से? ये वही वाला सवाल हो गया कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। तो ये सेल आ किधर से रहा है? There is a question, someone has written something in the chat box. Ma'am, does other animal cause coronavirus? Yes, definitely they cause कोरोना वायरस एनिमल्स में भी होता है। आज के डेट में हम कोरोना वायरस जान रहे हैं, बट जब अभी 12th का पढ़ाऊंगी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहां पे सार्स डिजीजेस आएगा, वहां पर कोरोना वायरस बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट द वेरी फर्स्ट टाइम एनिमल्स में होता था, अभी ह्यूमन बींग्स को भी इन्फेक्ट किया। यस जुनैद। Ma'am, do virus perform metabolism? Yes, bacha, Do you are not clearly audible. virus perform metabolism? Can you please write in the chat box? I'm not able to hear you. So there comes a modification in the cell theory, क्योंकि ये cell theory ने हमें ये नहीं बताया कि ये सेल आ कहाँ से रहा है। Then there is modification of the cell theory that was put forward by another scientist, that is your Rudolf Virchow. Rudolf Virchow ने modification किया हमारे cell theory में। So Virchow in the year 1855 modified the cell theory. Modified the cell theory. This cell theory, the modified cell theory, is also known as cell doctrine or cell principle. अगर किसी भी MCQ में सेल थ्योरी के जगह वर्ड हो सेल डॉक्ट्राइन और सेल प्रिंसिपल, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दे आर टॉकिंग अबाउट द सेल थ्योरी ओनली। सो मॉडिफिकेशन में क्या बताया रुडोल्फ वर्चाउ ने? उसने बोला कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। हर सेल अपने प्रीवियस सेल से ही बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज योर माइटोसिस एंड meiosis. So this was a revolutionary thing that was presented by the Rudolf Virchow in order to modify the cell theory that all cells comes from pre-existing cells. All cells comes from pre-existing cells by the process of cell division. By the process of cell division. सेल डिवीजन की वजह से हमारे सेल्स जो हैं वो बनते हैं। अब ये सारी चीजें एक साथ इकट्ठा करके सेल थ्योरी या फिर सेल डॉक्ट्राइन या फिर सेल प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं। और फिर जब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है तो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर।
सिर्फ एक सेल ही सारा काम नहीं करता है. There is division of levels. The cells which are structurally similar as well as functionally similar, they are being grouped together. तो tissue, organ system, तो ये एक work करता है in a coordinated manner. तो जितने भी cells present हैं in a multicellular organisms, they all work in a coordinated manner in order to perform the various activities. ठीक है? So this is how the modern cell theory also comes into existence. Now what are the different types of cells? पहले हमने unicellular और multicellular पढ़ा. अब मैं बताऊंगी कि cells depending upon कि whether they are differentiated or not, differentiated or functional. यहाँ पर दो ये word है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है कि what is the difference between these two words. तो actually अगर मैं बोलूं there are three different types of cell. One is your undifferentiated cell, the other one is your differentiated cells, and the third one is your de-differentiated cells. तीन words मैंने बोले. I have to rub the board, just pardon me for a minute. So we are talking about types of cells. Your undifferentiated cell, undifferentiated. The second one is your differentiated. And the third one is your de-differentiated. I will explain what is it. Listen to me very carefully. मैं एकदम simple सा example दूंगी जिससे ये concept आपका बहुत अच्छे से clear हो जाएगा. जब ये सेल डिवीजन होता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो व्हेनेवर देयर इज सेल डिवीजन, एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है, तो इट गोज थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेप्स. बहुत सारे स्टेप से वो फॉरवर्ड होता है, आगे बढ़ता है. ठीक है, वन टू अनदर. And basically your cell cycle consists of two major steps, that is your nuclear division and the cytoplasm division. तो जब ये सेल डिवाइड करता है उससे पहले सेल खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, दैट इज योर इंटरफेज स्टेज. At that stage there are various checkpoints. Listen to my word very carefully. Checkpoints. सेल साइकिल में बहुत सारे checkpoints होते हैं जो डिटरमाइन करता है कि हमारा जो साइकिल है वो वन स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर इसी स्टेप पे अरेस्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 1 2 3 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो सेकेंड स्टेप पे आया तो यहाँ पर एक चेक पॉइंट है, और ये चेक पॉइंट के पास सेल को डिसाइड करना पड़ता है वेदर इट वांट्स टू मूव फॉरवर्ड और इट वांट टू रिमेन एज सच इन अ सेल. वो 2 से 3 पे जाएगा या फिर 2 पे एज सच रहेगा बॉडी के अंदर, उसको अभी ना डिवाइड करना है ना डिफरेंशिएट करना है. तो दैट इज योर अनडिफरेंशिएटेड सेल. जो सेल के जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है बट वो सेल साइकिल में फर्दर प्रोसीड नहीं कर रहा है. वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल इज योर स्टेम सेल्स, कि वो ना तो डिफरेंशिएट हुआ है. डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि ये सेल जो भी सेल साइकिल में आगे फर्दर मूव करेगा तो वो डिफरेंशिएट होके कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, और जब भी वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज योर डिफरेंशिएटेड सेल. दैट मीन्स व्हेन द सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, एक छोटा से एम्ब्रियो से पूरा का पूरा बॉडी बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन. दैट मीन्स द सेल्स आर डिवाइडिंग, दे आर डिफरेंशिएटिंग टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस. सम ऑफ द सेल्स which have similar functions, they differentiate to form the liver cells. Some which have another similarity in their functioning, they form the intestine का सेल बना सकता है, liver का सेल बना सकता है. So this is your differentiation, कि वो normal चीजों से खुद को differentiate कर लिया. For example, यहाँ पर भी एक simple example दे रही हूँ जो click होगा आपको. बहुत सारे बच्चों ने हर साल 10 और 12 का एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, तो that is a mass, बहुत सारा सेल है, बहुत सारे बच्चे, बट उसमें से कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने खुद को डिफरेंशिएट कर लिया. नो, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू सर्व द नेशन.
So that is your differentiated. You opted for the NEET preparation. Some of the students, they opted from the JEE preparation. Some of the students, they think I want to go to do some financial services. तो उसने CA कॉमर्स को ऑप्ट किया. तो there are many 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 more. अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. तो this is differentiating. तो वैसे ही सेल भी डिफरेंशिएट करता है in order to perform different function. Getting my point? ये अनडिफरेंशिएटेड है. ये एज सच सेल के अंदर प्रेजेंट है, जस्ट लाइक योर स्टेम सेल. कि जब भी सेल को जरूरत होगी, जब भी बॉडी को जरूरत होगी, तो ये फिर खुद को डिफरेंशिएट कर सकता है टू फॉर्म अ स्पेशल टाइप ऑफ अ सेल. जब भी जरूरत होगी, जब भी नीड होगा. अभी ये सोया हुआ है, ठीक है, जैसे कंकरेंट 6 मंथ या 9 मंथ्स होता था ना, 6 महीने, वैसे ही ये अभी रेस्टिंग स्टेज में ये सो रहा है. ये G0 फेज को एंटर कर जाता है, बट व्हेनेवर योर बॉडी नीड्स इट, इट कम बैक. द थर्ड वन इज योर डी डिफरेंशिएटेड. मतलब जो सेल डिफरेंशिएट हो गए हैं, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन गेन कर लिए हैं. स्पेसिफिक फंक्शन गेन करने के साथ साथ क्या करते हैं? They stop dividing. When they differentiate to perform a specific function, they also stop dividing. But when these cells, the differentiated cells, they have to again enter the dividing phase, they came back. वो फिर से साइकिल में पीछे जाते हैं, डी डिफरेंशिएटेड होते हैं. दैट मीन्स कि जो एक स्पेसिफिक फंक्शन लिया था, डिवाइड करना स्टॉप कर दिया था, वो बैक हो जाते हैं और फिर से डिवाइड करने लगते हैं. एंड दैट इज हेल्पफुल. जब भी हमें कोई वुंड होता है, वहां पर नए सेल आते हैं, उसको कवर कर देते हैं, नए सेल्स ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्किन में अगर छोटे से चोट लग जाती है तो नया सेल आता है, वहां पे रीजेनरेशन जब भी होता है तो भी वहां पर डी डिफरेंशिएशन होती हैं. तो डी डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्चुअली द स्पेशलाइज्ड सेल, दैट मींस द डिफरेंशिएटेड सेल्स जो होते हैं, ये वो क्या करेंगे? वो लूज कर देते हैं अपना स्पेसिफिक फंक्शन, अपना स्पेसिफिक रोल, और अगेन इंड्यूस द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन इन ऑर्डर टू डू द सेल रिपेयर, सेल रीजेनरेशन. ओके, नाउ अभी बताओ कि कितने बच्चों को ये तीनों चीजें समझ में आई कि ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स क्या होते हैं? जुनेद को समझ में आया? रेज हैंड है जुनेद का. यस जुनेद. And that's why. Anyone wants to ask something regarding this? Yes, ma'am. Can you just give a basic overview of all the 3 points so we can Yeah, note it sure, down? sure. So basically, your undifferentiated cells को जो simple language में अगर हमें समझाना है तो मैं बोलूंगी कि these are the stem cells. And you know that the stem cells of the body, they are capable of dividing into any type of the cell that your body needs. तो ये उसी स्टेज में अभी सेल के अंदर, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, और जब भी हमारे बॉडी को नीड होगा तो जो भी सेल चाहिए, डिफरेंशिएट होके जो भी सेल चाहिए वो ये बना सकता है. तो ये अभी अनडिफरेंशिएटेड है. अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है ये स्पेशलाइज नहीं है, इसने कोई स्पेशल फंक्शन गेन नहीं किया है. ये अभी सो रहा है, अभी डिसाइड कर रहा है कि इसको 12th के बाद क्या करना है. क्लियर? कुछ अभी उसने कुछ नहीं किया है, उसका कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है. These cells remain as such, क्योंकि ये लॉक हो चुका है. क्यों लॉक हो गया है? क्योंकि इसने चेक पॉइंट को क्रॉस नहीं किया और इसी स्टेज में बॉडी के अंदर लॉक हो गया है. डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, दैट मीन्स कोई स्पेसिफिक फंक्शन गेन नहीं किया है. दैट इज योर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. एंड द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो अनडिफरेंशिएटेड सेल के लिए मैं बोलूंगी, योर स्टेम सेल. ठीक है? So they are unspecialized. Yes, definitely मैंने बोला कि कोई specific function gain नहीं किया है, तो they are absolutely unspecialized and they have power of division. So whenever the body needs them, whenever there is a need of such cells, they undergo division. Yes, ये जो 2 है ये फिर से वापस आ सकता है सेल साइकिल में और प्रोसीड हो सकता है फर्दर. तो यहाँ पर सिर्फ 2 important points आपको remember करना है for undifferentiated cells कि they are unspecialized but have power of division.
power of division. Is it now clear? पावर है डिवीजन का. मुझे आता है क्रिकेट खेलना, बट अभी मैंने बंद कर दिया है क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है. बट आता है तो जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी, मेरी टीम को मेरी जरूरत पड़ेगी, तो आई एम सेल्फ इफिशिएंट टू परफॉर्म इन अ बेटर वे. तो वो सेल्स, वो क्रिकेटर, वो क्या है हमारा अनडिफरेंशिएटेड सेल. ये किसी भी वो ओपनर भी बन सकता है, मतलब मल्टी टैलेंटेड है. ठीक है, तो वो सेल है हमारे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, क्योंकि ये स्पेशलाइज नहीं है. अभी मैंने इसको ये नहीं कहा है कि तुम ओपनिंग ही करोगे, या फिर तुम लास्ट डाउन में उतरोगे, या फिर तुम विकेट कीपिंग करोगे, या फिर तुम बॉलिंग बहुत अच्छा करते हो. ऐसा कुछ भी स्पेशल फंक्शन इसको नहीं दिया गया है. बट ये मल्टी टैलेंटेड है, ये अनस्पेशलाइज्ड है, बट दे हैव पावर ऑफ डिवीजन. सो व्हेनेवर योर बॉडी इज इन नीड, इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें बताती हूँ. रूट एंड शूट का एपेक्स जो टिप होता है वो कंटिन्यूअस डिवाइडिंग स्टेज में होता है. मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, सुना होगा. प्लांट सेल्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, कंटिन्यूअस डिवाइडिंग सेल्स. तो बेसिकली ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, इसका कॉमन एग्जांपल है योर रूट एंड शूट एपेक्स. स्किन का सेल्स हो सकता है, बोन मैरो हो सकता है. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. बट डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या है, इनको एक स्पेशल फंक्शन मिल गया है बॉडी में करने के लिए, कि आप लिवर सेल बना लो, या फिर आप किडनी सेल्स बना लो, आप स्टमक के सेल्स बना लो, और इसके पास अभी स्टॉप डिवीजन, सेल डिवीजन जो है इसका ये स्टॉप हो चुका है. नाउ दिस डिफरेंशिएटेड सेल्स, अगर मेरे स्किन में चोट हो गई है, वुंड हो गया है, उसको रिपेयर करना है, यहाँ पर नए सेल्स को ग्रो करना है, तो ये स्किन सेल्स जो है वो फिर से डिफरेंशिएटेड स्टेज से डिफरेंशिएटेड स्टेज में एंटर करेगा इन ऑर्डर टू रिपेयर, इन ऑर्डर टू रीजेनरेट. नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Yes. तो डिफरेंशिएटेड क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल्स losses specificity, spatial function, and again enter cell cycle. फिर से वो सेल साइकिल को एंटर कर लेता है in order to do repair, regeneration, etc. ठीक है, तो these are the 3 different types of cells that are present in our body. Our cell, ये हर्षवर्धन कुछ बोलना है बच्चा? ओके, योर सेल इज एन ओपन सिस्टम. जब भी आप अपना बुकलेट ओपन करोगे तो वहां लिखा होगा, एक लाइन है कि सेल एन ओपन सिस्टम. व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन्स ओपन सिस्टम? क्योंकि सेल के पास एक आउटर कवरिंग होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन, which allow the entry of the various substances, various nutrients, various ions, water that a cell need, as well as the energy. एनर्जी भी चाहिए तो वो भी एंटर हो रहा है, एंड द हीट इज बीइंग एक्सपोज्ड आउट. हीट जो है वो वहां से रिलीज भी हो रहा है. तो एक ही गेट है जिससे सारी चीजें अंदर भी आ रही हो और हीट भी रिलीज हो रहा है. तो ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम बोलते हैं. दैट मीन्स अ ओपन सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग बाय अ सिंगल membrane, by a single boundary that allow the material to move in and out of the cell. Now these cells can be of various shapes as well as various sizes. ये आपने 7, 8, 9, 10th में भी पढ़ा है कि सेल के बहुत सारे डिफरेंट शेप्स होते हैं. अगर हम शेप की बात करें तो सबसे पहले हमारे माइंड में आरबीसी आता है. आरबीसी का शेप कैसा होता है? इट्स अ रेड ब्लड सेल का शेप कैसा होता है? बाइकॉन्केव, Round and by डिस्क शेप बोल सकते हैं. प्लांट्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कॉलमनार, सिलेंड्रिकल, क्यूबॉइडल जैसे दिखते हैं. नर्व सेल्स जो है वो तुम्हारा हाईली ब्रांच्ड होता है. तो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन दैट अ सेल हैज टू परफॉर्म,
उसके शेप्स डिसाइड होते हैं कि उसका शेप कैसा होगा, ठीक है। तो देयर आर न्यूमरस सेल रेंजिंग फ्रॉम स्फेरिकल, ओवल, ओवॉइड, डिस्कॉइडल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, ये सारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं बहुत सारे। तो योर सेल वेरी इन देयर शेप एज वेल एज साइज में भी वेरी करता है। बैक्टीरिया का साइज भी बहुत छोटा होता है, इट यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 माइक्रोमीटर। जो वायरसेस होते हैं दे आर इवन स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, तो उनका साइज 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर के रेंज में होता है। दीज ऑल इंफॉर्मेशंस आर गिवन इन योर बुकलेट। नाउ one important thing, but some animals नहीं, some plants or some cells, क्योंकि एसिटाबुलेरिया ये एक यूनिसेलुलर एल्गा है। यूनिसेलुलर है तो सिर्फ एक सेल से ही बना हुआ है, बट इसकी हाइट जो होती है वो 10 सेंटीमीटर होता है। तो बहुत बड़ा भी हो सकता है, एक सिंगल सेल भी बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सेल्स जो हैं दे आर वेरिएबल, highly variable in their shape and size. Now the major differentiation, cell का major differentiation आ रहा है, that on the basis of the nucleus, the organization, on the basis of the organization of nucleus, our cell is divided into two major categories, that is your prokaryotes and eukaryotes. You all must be knowing about prokaryotes and eukaryotes. This is being mentioned in your booklet बच्चा, बुकलेट में है ये तीनों चीजें, ठीक है। आपको वहां से समझ में आ जाएगा। और अभी आपने सुना है अच्छे से, क्रिकेट भी खेल लिया, तो अब आपको और भी अच्छे से समझ में आ गया। मुझे सब कुछ आता है तो मैं सारा काम कर सकता हूँ, इट्स लाइक दैट। So on the basis of the organization of the nucleus, the basis of nucleus organization, cell is divided into two major classes. One is your prokaryotes and the other one is your eukaryotes. प्रोकैरियोट जो है ना वो यूकैरियोट से एज कंपेयर्ड, ये एक नीट का क्वेश्चन है, एक साल आया है इसलिए ये डिस्कस कर रही हूँ। प्रोकैरियोट जो है वो स्मॉलर इन साइज तो होता है यूकैरियोट से, बट इसका रिप्रोडक्शन जो ये डिवाइड करता है, द रेट ऑफ द डिवीजन इज मच rapidly. rapid. Yes, they divide rapidly, multiply rapidly. Although the size of the prokaryote is smaller than the eukaryotes, but they multiply rapidly. So basically the size of the prokaryotes, it ranges from 0.1 to 5 micrometer, और eukaryotes का 5 to 100 micrometer, but ये reproduce rapidly, multiply rapidly करता है, और as compared to the prokaryotes it's multiply slowly. इसका सबसे सिंपल एग्जांपल मैं बताती हूँ। प्रोकैरियोट्स का जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है जो हमें रिमेंबर करना है, इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया, योर साइनोबैक्टीरिया एज वेल एज योर माइकोप्लाज्मा। बट यूकैरियोट्स के अंदर हमारे सारे हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं, ठीक है। Eukaryotes multiply slowly as compared to the prokaryotes. So the other important difference between prokaryotes and eukaryote is that, सबसे पहला डिफरेंस हम डिस्कस करते हैं। We know, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सेल का डायग्राम बनाया था और बोला था कि सेंटर पोजीशन में न्यूक्लियस है, and there are many membrane bound cell organelles, बहुत सारे membrane bound cell organelles present होते हैं। But in case of prokaryote, true nucleus is absent. I am using the term true nucleus. True nucleus का मतलब होता है the genetic material is being surrounded by the nuclear envelope. यहाँ पर एक nuclear membrane होना चाहिए
और उसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होना चाहिए. But in case of prokaryotes, nuclear membrane is not there and the genetic material is freely suspended in the cytoplasm, and in that case they are known as nucleoid and not nucleus. तो सबसे मेजर चीज क्या है कि प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियोइड होता है. Nucleoid is nothing but, if you have to make it understand to in a simpler way, you can say that nucleoid is without membrane. So in case of prokaryote, they have nucleoid, but in case of eukaryotes, true nucleus is present. That means the genetic material is surrounded by the nuclear envelope, as well as the nucleolus is also present inside the nucleus. The other thing is that as a cell consists of a number of membrane bound cell organelles, but these membrane bound cell organelles are absent in case of prokaryote but are present in case of eukaryotes. So यहाँ पर true nucleus is absent. True nucleus is absent. True nucleus is present. The other is membrane bound cell organelles are absent. Membrane bound cell organelles are absent. My writing is visible to all of you. समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिख रही हूँ? क्योंकि sometimes बच्चों को problem होती है. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, white chalk is clearly visible. White is clearly visible. Okay, I will use the white one only. So membrane bound cell organelles are absent in case of prokaryotes, but membrane bound cell organelles are present. Here we will discuss one more thing. In prokaryotes, you will find that in the differences, it was mentioned that prokaryote is one membrane envelope. Prokaryotes का जो organization होता है has one envelope organization. But in case of eukaryotes, they have two envelope organization. इसका मतलब क्या है वो मैं समझाती हूँ. One envelope organization का मतलब है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें सिर्फ एक ही एनवेलप होता है, दैट इज योर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन. बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स दे हैव सेल मेम्ब्रेन as well as the membrane of the cell organelles. Cell organelle के पास भी अपना membrane होता है. इस वजह से the organization of the prokaryotes, a prokaryote has one envelope organization, but your eukaryotes have two envelope organization. One envelope organization. Envelope organization. Clear? Now, another important difference. As I have mentioned, I have not written here that all the cell organelles are absent. I have mentioned here that membrane bound cell organelles are absent, and there is one cell organelle which is non-membrane bound, and that is your ribosomes. So ribosomes are present both in prokaryotes as well as eukaryotes, but they are of two different types. Why ribosomes? Here arises a question. कोई आपसे पूछ सकता है कि why ribosomes are present in prokaryotes and eukaryotes both? Because they are non-membrane bound cell organelle. Ribosomes are non-membrane bound
cell organelle, and because of that only it present both in prokaryotes and eukaryotes. But जब भी वो prokaryotes में present होता है तो हम बोलते हैं कि ribosome of prokaryotes is 70S type. I will explain what is this 70S type, and the ribosome of eukaryotes is the 80S type. अच्छा, जैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमेशा यूनिट्स लिखते हो जब भी आप फिजिक्स का सवाल करते हो, वन डायमेंशनल मोशन और टू डायमेंशनल मोशन, यू ऑलवेज यूज टू मेंशन टाइम को मेंशन करते हैं सेकेंड्स में, मीटर, सेंटीमीटर. जब भी केमिस्ट्री करते हो तो वहां पर भी जब भी मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो मोल लिखते हो, एएमयू लिखते हो. वैसे ही जो एस यहाँ पर आपको दिख रहा है 70S and 80S, that is a unit, that is Sydberg unit. S is nothing but it's a unit. S is Sydberg unit. So you can ask me, ma'am, what is this 70 and 80? ये word क्यों हमने दिया है राइबोसोम्स को जो कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है? तो बेसिकली राइबोसोम इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स. एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और एक लार्जर सब यूनिट होता है. अगर ये मेरा फिस्ट है तो यहाँ पर वो आके अटैच हो जाता है, ठीक है. और एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है. ये दोनों पहले डिसोसिएटेड होते, बट व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मैग्नीशियम, ये हम जब राइबोसोम डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तब मैं कॉन्सेंट्रेशन को डिटेल में बताऊंगी, वो आके एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं. बट जब भी हमने इसको सेंट्रीफ्यूज किया एट अ वेरी हाई स्पीड, सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक होती है जो हर बायोलॉजिकल लैब या फिर केमिस्ट्री लैब में आपको मिल जाएंगी. हम किसी भी कंपोनेंट्स को अगर वेरी हाई स्पीड पे रेवोल्यूशन करते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, लाइटर एंड द स्मॉलर पार्टिकल, जैसे हमारा राइबोसोम भी दो कंपोनेंट से बना हुआ है, स्मॉलर एंड द लार्जर सब यूनिट्स, वो डिसोसिएट हो जाते हैं. मान लो कि मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें दो डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स है, एक लाइटर पार्टिकल और एक हेवियर पार्टिकल है. तो लाइटर पार्टिकल पहले सेटल डाउन होगा या हेवियर पार्टिकल पहले सेटल डाउन होगा? हेवियर. ठीक है, तो हमारा तो जो हेवियर है वो नीचे आ गया, लाइटर ऊपर आ गया, तो दो सेपरेट लेयर्स मिल गए हमें. जब ये जो दो सेपरेट लेयर मिले हैं, डिपेंडिंग, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है और साइज पे डिपेंड कर रहा है. सो योर सिडबर्ग यूनिट, और जो ये हम सेंट्रीफ्यूगेशन का टेक्निक यूज करते हैं टू सेपरेट, इज बेस्ड अपॉन डेंसिटी एंड साइज एंड नथिंग एल्स. डेंसिटी और साइज पे डिपेंड कर रहा है. तो वी केम टू नो कि जो हमारा 70S है वो जो दो सब यूनिट से बना हुआ है, वो दो सब यूनिट कौन से हैं? 50 एंड 30. 50S and 30S. और जब ने हमने 80S यूकैरियोटिक के राइबोसोम्स को एक्सट्रैक्ट किया और उसको सेंट्रीफ्यूज किया, तो देखा यहाँ पर भी दो डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं. वन इज 60S and one is 40S. It's not like that कि हम इसको ऐड करेंगे तो ये 70 बनना चाहिए, इसको ऐड करेंगे तो ये 80 बनना चाहिए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ये साइज पे डिपेंड कर रहा है. इसलिए कभी भी ये गलती मत करना कि प्लस करने से वो 70 और 80 आना चाहिए. नो. सो इट्स अ टेक्निक इन ऑर्डर टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस. अगर मिक्सचर होता है किसी चीज में, बहुत सारी चीजें सब्सटेंसेस मिक्स है, हम उनको सेपरेट आउट करते हैं तो हम डिस्टिलेशन का टेक्निक यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं. अगर पार्टिकल्स के साइज में डिफरेंस होता है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन इज द सिंपलेस्ट मशीन. अगर आपने कभी देखा हो तो एक ऐसे सर्कुलर मशीन के जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे. और ये होल जो होते हैं, इसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब, जिसमें हमारा मटेरियल है जिसको हमको सेपरेट करना है, वो हम पुट करते हैं और इसको क्लोज करते हैं. जैसे कि पहले के टाइम में इलेक्ट्रिक ओवन आता था ना, अपने दादी के घर पे देखा होगा, पहले इलेक्ट्रिक ओवन्स जो थे वो जैसे ऐसे माइक्रोवेव जैसा ओवन नहीं होता था, इलेक्ट्रिक ओवन होता था. हम उसको
ऑन करते थे, ऊपर से ग्लास का जस्ट लाइक दैट हमारा सेंट्रीफ्यूज मशीन भी दिखता है, ऊपर से ऐसे ग्लास जैसा दिखता है, बहुत हाई स्पीड में, यू कैन रोटेट इट एट अ स्पीड ऑफ 5000 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो अगर इतने तेजी स्पीड में वो रोटेट करता है, रेवोल्यूट करता है, जब भी हम ब्लड को भी सेपरेट करते हैं ना, प्लाज्मा, सेरम, ब्लड सेल्स को सेपरेट आउट करते हैं, तो भी हम सेंट्रीफिकेशन मशीन ही यूज करते हैं। सो जब भी पार्टिकल्स को सेपरेट करना है तो हमने उसको सेंट्रीफ्यूज किया और वैसे ही हमें ये 70s और 80s मिला। नाउ हियर कम्स अ क्वेश्चन कि मैम राइबोसोम्स ठीक है, दोनों में ही प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट का राइबोसोम 70s होता है और यूकैरियोट का राइबोसोम जो होता है वो 80s होता है। प्रोकैरियोट्स का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल जो मैंने तुम लोगों को बोला कि यू शुड रिमेंबर कि इज योर बैक्टीरिया and your cyanobacteria, that is blue green algae, BGA। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज दिस BGA? BGA is blue green algae which is also known as cyanobacteria as well as mycoplasma. Mycoplasma is the smallest known organism. Its size ranges from 0.1 micrometer to 0.3 micrometer. बहुत छोटा होता है। Smallest known microorganism is your mycoplasma that comes under prokaryotes. That comes under prokaryotes. अभी प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस तो है नहीं, न्यूक्लियोइड है, ट्रू न्यूक्लियस उसके पास है ही नहीं, क्योंकि उसके मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं कि हाउ द जेनेटिक मटेरियल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स में अ सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल और सर्कुलर। बट जब भी हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, अभी आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हो, वहां सर ने बताएंगे आपको आगे, या फिर बता भी दिया होगा कि लीनियर डीएनए इज देयर। यस, we in human beings there are linear DNA, we are eukaryotes, so all the higher plants and animals comes under eukaryotes. Higher plants and animals eukaryotes के अंदर आता है, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करें तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट डीएनए इज सर्कुलर और organized into a single chromosome, but eukaryotes it consists of nuclear DNA is linear, ठीक है, nuclear DNA is linear। न्यूक्लियस का डीएनए तो लीनियर होता है, बट आप कंफ्यूज नहीं हो अपना बुकलेट देख के, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगी कि देयर आर टू सेल ऑर्गेनल्स, दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं सेल के जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली दे आर नोन एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर डीएनए तो लीनियर होता है, बट नॉन न्यूक्लियर डीएनए जो कि सेल ऑर्गेनल के पास प्रेजेंट है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास प्रेजेंट है, दैट इज सिमिलर टू द प्रोकैरियोट्स, दैट मींस दे आर सर्कुलर इन नेचर, ठीक है। यूकैरियोट्स के क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम भी होता है, और वो राइबोसोम भी जो होता है वो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम को रिजेंबल करते हैं, दैट इज योर 70s टाइप। किसी को किसको समझ में आया और किसको किसको कंफ्यूजन है? यस, बहुत सिंपल सी चीज है। मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक का सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर इन नेचर होता है और एक सिंगल क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज होता है, बट यूकैरियोट्स का न्यूक्लियर डीएनए, जो न्यूक्लियस के पास डीएनए है वो लीनियर होता है, जो हम हमेशा से पढ़ते हैं, हम डायग्राम देखते हैं डीएनए का लाइक दिस, तो लीनियर डीएनए इज देयर, बट द डीएनए that is present in cell organelle that are circular in nature। उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल ऑर्गेनेल्स हैं इन यूकैरियोट्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के पास तो सेल ऑर्गेनेल है ही नहीं, यूकैरियोट्स का जो सेल ऑर्गेनेल है उसका राइबोसोम भी प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम को रिजेंबल करता है, दैट मींस उनके पास भी 70s राइबोसोम होते हैं।
Is it clear to all of you now? थर्ड लेक्चर है आपका? No, ma'am. नहीं है? ओके ये बात समझ में आई सबको? एक्चुअली प्लीज थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है ये, मैं रब करके लिखूं या फिर समझ में आ गया? समझ में आ गया। हम समझ आ गया। सबको आ गया? ठीक है, तो आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू रीड योर एनसीईआरटी फर्स्ट। आज क्या करना है, एक बार अपना एनसीईआरटी सेल बायोलॉजी वाला जो चैप्टर है उसको ओपन करना और उसके स्टार्टिंग की जो चीजें हैं उनको पढ़ने की कोशिश करना। इट्स ऑन योर पेज नंबर, गई थी बता। जब भी हमने मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल थ्योरी पढ़ा और हमने बोला कि रुडोल्फ वर्चाउ ने बोला कि सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो वहां पर उसने एक सेइंग दी थी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, दैट इज योर डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल। आप ये चीज देखोगे आपके बुक में मेंशन है, इट्स ऑन पेज नंबर 126, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि Rudolf Virchow in the year 1855 first explained that cells divide and new cells are formed from pre-existing cells, और इस चीज को उसने बोला था omnis cellula e cellula. He modified the hypothesis of Sheldon and Schwann to give the cell theory a final shape, and this final shape is known as cell doctrine or cell principle as well. So this you have to keep in your mind. So prokaryotes के बारे में भी हमारे बुक में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, ये आप आज पढ़ोगे। और यहाँ पर एक फिगर है ऑन पेज नंबर 128, दैट इज अ डायग्राम है यहाँ पे, जो डिफरेंट सेल्स का जो साइज है वो मेंशन्ड है। तो जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है हमें वही पढ़ना है। बैक्टीरिया का दिया हुआ है 1 to 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ का दिया हुआ है 0.1 माइक्रोमीटर, वायरसेस का दिया है 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर, और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स का दिया है 10 to 20 माइक्रोमीटर। सो this you have to read and we will proceed further. Ma'am, what is PPLO? बच्चा, PPLO is a type of mycoplasma जो कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये निमोनिया कॉज करता है, माइकोप्लाज्मा भी निमोनिया कॉज करता है और उसको हम माइकोप्लाज्मिक निमोनिया बोलते हैं, ठीक है। तो पीपीएलओ इज अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा के और भी बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। Although prokaryotes have cell wall, but mycoplasma के पास cell wall भी नहीं होता है, और mycoplasma can also survive without oxygen. These all small things we will discuss in our next class. Ma'am, what is actually metabolism? Yes, Dinesh, I will definitely explain कि what is metabolism. अभी आप बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, वहां आपने पढ़ा होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होकर छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जब भी हम फूड ईट करते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे स्टमक में क्यों नहीं चला जाता, हम बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू पास ऑन होते हैं। दैट मीन्स कि सबसे पहले हमारा सलाइवा का रोल आता है, हमारे तित का रोल आता है, हम उसको च्यूइंग करते हैं, उसको छोटे से बोलस में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो स्टमक में, इंटेस्टाइन में बहुत सारे रोल्स को पास ऑन करता है। तो जब भी बिगर मॉलिक्यूल्स, your metabolism usually consists of two broader words. Metabolism दो चीजों से बना हुआ है। One is your metabolism, अगर मुझे सिंपल वे में किसी को एक्सप्लेन करना होता है तो मैं क्या बोलती हूँ कि metabolism is the sum total of catabolism and anabolism. You can remember catabolism C से cut, that means the breakdown of the macromolecules into micromolecules. Breakdown वो जितने भी प्रोसेसेस हैं जहां पर हमारा प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड जो हैं वो सारे ब्रेक होके अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप जो है वो ब्रेक डाउन होके मोनोसैकेराइड्स बनाता है। ये जितने भी ब्रेकिंग के प्रोसेस होते हैं मेटाबॉलिज्म में, दैट कम्स अंडर कैटाबॉलिज्म। बट समटाइम्स छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल, जैसे एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड्स के साथ मिलता है और भी अमाइनो एसिड्स के साथ मिलके क्या बनाएगा, एक प्रोटीन बनाता है। तो दैट इज जॉइनिंग ऑफ द थिंग्स टुगेदर
is your anabolism. So the sum total of catabolism and anabolism, ये जितने भी तोड़ फोड़ की चीजें बॉडी के अंदर होती हैं, टूटती हैं, बड़ी चीजें टूटती हैं और छोटी चीजों को जोड़ के थोड़ा बड़ा सा चीज बनता है, ये सब मिला के हम उसको बोलते हैं दैट इज द मेटाबॉलिज्म. आपके बॉडी के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है वो भी आपके मेटाबॉलिज्म का पार्ट है. जब भी हम रेस्पिरेशन की बात बोलते हैं तो भी हम उसको ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन बोलते हैं, वो भी आपका मेटाबॉलिज्म है. तो जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं या तो टूटने का या तो बनने का, वो सब मेटाबॉलिज्म है. क्लियर? Yes, ma'am. चलो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. टुमारो शायद मेरा क्लास है एंड वी विल प्रोसीड फर्दर.